Good evening friends, myself Satyam Misra and I welcome to all of you at your own YouTube channel Effective Education Point. Friends, today I am going to explain you the first chapter of First Flight book of class 10th and the name of that chapter is A Letter to God. This chapter has been written by a very famous writer of America and the name of that writer is G.L. Funes. So here I am going to tell you the summary of this chapter in detail. How you will be able to understand that what is the message of the chapter, what is the theme of the chapter and how this chapter is giving a very important message to live a comfortable and as well as a pleasing life. So in introduction you can say the story A Letter to Funes revolves around the idea of having unquestionable belief in something. This word is giving you a message that the story begins with a protagonist character, with the hero of, and the story hero is Lencho, a farmer who is a very hard-working man and who used to do hard work in his field regularly every year. And in every year his crops always he was able to have a good crop in his field, and on the basis of that he was believing that this year he is going to have a good crop also. But what happened that at the time when he was watching and seeing the condition of his crop by standing in the field, he was thinking and he was understanding very clearly that now this earth and as well as the crop of Lencho was needed one downpour, one shower of rain, because in the lackness of that rain, due to the lackness of the rain, the condition of crop was very dull, it was not good at all. So he was thinking if they are not going to have a good rain and as well as a shower of rain, so they will not be able to have a good crop in that year. So Lencho was knowing the weather and as well as his crop very well. So he do a prophecy that maybe after a few hours they are going to have a good rain, they are going to have a shower, because at the time he was watching towards the sky and in that direction he was seeing now the clouds were approaching in the same directions of Lencho's field. So he predicted that after an hour or after a few times they are going to have a good water in their field, have a good rain in their field. So his wife, who was cooking food at the time, she also told that if it will be the God's willing, definitely we will have a good shower. तो फ्रेंड्स, मैं जनरली ये आपको बता रहा हूं कि ये जो स्टोरी है इसमें लेंचो नाम का जो कैरेक्टर है वही इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, वही हीरो है। और लेंचो की जो हार्ड वर्किंग्स हैं वो हम सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि हार्ड वर्किंग के बिहाफ पर ही वो ये प्रॉमिस करता है और उसको ये बिलीफ है कि उसको हर साल अच्छी फसल मिलेगी, एज यूजुअल उसे पहले मिलती रही थी। तो उस सेशन में क्या होता है कि उस साल लेंचो को एक्सपेक्टेशन थी कि फसल अच्छी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो थोड़े देर की बारिश का एक्सपेक्टेशन कर रहा था वो थोड़े देर की बारिश हो तो रही थी लेकिन वो हल्की बारिश न हो करके हैवली बारिश हुई और उसके बाद उस पे जो है हेल स्टॉर्म भी पड़ने लगे। और करीब 1 घंटे के आसपास जब हेल स्टॉर्म जो है वो चारों तरफ खेतों में और उसके आसपास गार्डन में और जहां उसका घर था उसके रूफ पर जब सारी चीजें बिल्कुल कवर्ड हो गई, वो ऐसे लगने लगा जैसे कि सॉल्ट से ढक गया हो। तो नाउ दिस लेंचो वाज थिंकिंग कि व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग नाउ इट इज बिकेम वर्स। उसको लगा कि मैं जैसा सोच रहा था वैसा हुआ नहीं और अब ये जो सिचुएशन है बहुत वर्स हो गया है और इस कंडीशन में अच्छी फसल पाना पॉसिबल नहीं है। Even he observed that there was not a single leaf in the plants. It means he understood that in that year they are going to be hungry if there is no one. But
suddenly he decided that if there is no one in the world, there is God who can help us. So standing in the middle of the field, he told his children that, children, even it is the total loss in our life, but remember one thing, that there is no one who dies due to hunger, because there is God who can help us. One more thing, this story giving you a very important message, कि the man who is hard working, the man who used to do his duty first, then there is God who will see your effort, and at the basis of your effort, God is going to reward you. तो इस बेसिस पर लेंचो, जो कि एक हार्ड वर्किंग मैन है, वो खुद पोस्ट ऑफिस जाता है और एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है कि ड्यू टू हेल स्टॉर्म एंड ड्यू टू हैवी रेन, the crop and everything of him is totally destroyed. So he requested to God, if you are not going to help us with 100 pesos in the year till the next crop is going to be ready, and till the new growing plants, नए फसल के होने तक, उस वर्ष उनके जीवित रहने के लिए, जीवन में खाने पीने के लिए, अगर गॉड उनको 100 पीसों से मदद नहीं करता है तो वो पूरा ईयर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो ईश्वर से रिक्वेस्ट करता है कि ओ गॉड, प्लीज सेंड मी 100 पीसों सो दैट आई एंड माय फैमिली कैन सरवाइव इन दिस ईयर इन द लाइकनेस ऑफ द क्रॉप। फसल न होने पर भी हम इस साल सरवाइव कर सकें, इसलिए लेंचो गॉड से रिक्वेस्ट करता है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ आप 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सीख सकते हैं। एक तो वो जब मेहनत करने का समय था तो उसने मेहनत किया, और मेहनत के बाद जब उसको कहीं कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तो उसने केवल एक ऑलमाइटी गॉड से रिक्वेस्ट करने का प्रयास किया। ये उसका एक अनशेकेबल फेथ था, और ये उसका एक अनक्वेश्चनेबल फेथ था, जहां उसको इतना विश्वास था कि गॉड विल हेल्प मी श्योरली। उसको लगता है कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। तो इस स्टोरी से हमें ये मैसेज भी लेना चाहिए कि हमें कभी भी पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, हमें वर्स्ट सिचुएशन में भी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि कंडीशंस बनते बिगड़ते रहते हैं, मगर हमारा जो विल पावर है, हमारा जो कॉन्फिडेंट है, हमारा जो बिलीव है, यही व्यक्ति को खराब दौर से अच्छे दौर में लाने में हेल्प करता है। लेंचो ने भी वही किया। उसको जितना वर्ष में मेहनत करना था उसने ईमानदारी से किया, और उसके बाद जब उसे लगा कि उस कंडीशन में वो सरवाइव नहीं कर सकता तो उसने उस सुप्रीम गॉड से रिक्वेस्ट किया, और फिर थ्रू द हेल्प ऑफ द पोस्ट मास्टर्स एंड एज वेल एज द एम्प्लॉइज ऑफ दैट पोस्ट ऑफिस ही गॉट 70 पीसोस देयर। इट मीन्स जब वो लेटर उसने लिख के उस पोस्ट बॉक्स में डाल दिया तो वहां पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जितने सारे एम्प्लॉयज थे, उनमें से एक एम्प्लॉय को वो लेटर मिला और वो बड़ा सरप्राइज्ड हुआ। वो कहता है कि उसने अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के कैरियर में कभी इस तरह का लेटर इस करेस्पॉन्डेंस पर उसे नहीं मिला था। सीधी सी बात है कि दुनिया के किसी व्यक्ति ने इससे पहले कभी ईश्वर को पत्र लिखकर पैसे मांगने का काम नहीं किया था। ये लेंचो ने ऐसा काम किया था जो उनके लिए अनबिलीवेबल था, और उनके लिए ट्रस्ट कर पाना टफ था कि हाउ अ मैन कैन थिंक लाइक दैट, कैसे कोई ऐसा सोच सकता है। तो वो उस लेटर को लेकर जाता है, और जब वो अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है तो पोस्ट मास्टर हु वाज अमेबल, हु वाज वेरी, यू कैन से कि अ वेरी अमेबल फ्रेंड, वो उस समय हंसता है। दोनों एक साथ उस पर हंसते हैं, और फिर फाइनली वो थोड़ा सीरियस होते हैं और डिसाइड करते हैं कि व्हाट अ फेथ ऑफ दैट मैन इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। कैसा अनबिलीवेबल विश्वास या कैसा अनसेकेबल विश्वास है इस व्यक्ति का। फिर वो जो पोस्टमास्टर है वो एम्प्लॉयज से रिक्वेस्ट करता है कि दे विल हेल्प, दे विल गिव अ लिटिल बिट or a part of their salary so that he can manage the amount and send it to the Lencho so that his faith in God is not going to be shaken। वो कहता है कि ईश्वर में उसका जो विश्वास है वो टूटे ना, इसलिए इन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम लेंचो के लेटर का जवाब देंगे। और पोस्ट मास्टर और उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने मिलके सब कलेक्ट किया, और फाइनली 70 पीसों जो हैं वो लेंचो को उन्होंने
भेजने का प्लान किया। और जब नेक्स्ट वीक जो लेंचो वहां अपने लेटर के इंफॉर्मेशन के लिए आता है और वो पूछता है, इंक्वायरी करता है, तो फाइनली उस पोस्टमास्टर के सजेस्ट करने पर वो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय है उस लेटर के साथ वो 70 पीसेज उसको रिटर्न कर देता है। और वो उस पर ऑब्जर्व करते रहते हैं कि इस पैसे के मिलने के बाद लेंचो प्रभावित होता है या नहीं। लेकिन उन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि लेंचो तनिक भी डिस्टर्ब नहीं होता है, उसको ऐसा लगता है जैसे ये पैसे तो मुझको मिलने ही थे। लेकिन वो तब दुखी हो गया जब उसने उस पैसे को काउंट किया और फाइनली ही saw that there was only 70 pesos. It was not 100 pesos as he requested to the God. Then once again he went to the windows and he asked for another letter, and there he wrote another letter and he requested to God that God, I got that 70 pesos whatever you sent to me, but now I am requesting to you that don't send the rest of the amount with this post office with this mail, because the employees of post office are a bunch of crooks. उसमें लेंचो ने उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पर अपना ट्रस्ट नहीं दिखाया। उसे ऐसा लगा कि गॉड ने उसको 100 पीसोज भेजे थे और ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने इसमें कम कर लिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी मदद जो है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही किए थे, उन्होंने ही उनकी मदद की थी, मगर उसको ऐसा लगता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही रेस्ट ऑफ अमाउंट रख लिया है। और वो दोबारा गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे 100 पीसों की बहुत जरूरत है, इसलिए रेस्ट ऑफ अमाउंट भी मुझे आप भेज दीजिए। तो इस तरीके से या लेटर टू गॉड के थ्रू जो राइटर है वो बताना चाहता है कि कितना कॉन्फिडेंट था वो व्यक्ति उस मनी के लिए, उस अमाउंट के लिए जो उसने गॉड को लिखा था उस टोटल लॉस के बाद। तो इस चैप्टर की समरी यही थी जिसको मैंने इजीएस्ट तरीके से हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीजें आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हुई हो या आपको लगता है कि ये वीडियो बिल्कुल यूजफुल है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।